यूपीएससी वी नो द सिलेबस, तो वी डो नॉट नो एनी पर्टिकुलर सोर्स जिसमें हम एकदम बोल सकते हैं कि 100% रिलायंस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा. Although you cleared the CSET paper, but you are not confident. No, sir. I am vigilant. I am confident, but I have to be vigilant about That's CSAT. wonderful word, confident. What जब आप किसी भी चीज़ का नॉलेज गेन करते हो, we do not want कि आपको उसमें है ना PhD करनी है. With whatever knowledge you have, just apply that knowledge. That's why you will figure it out later on कि हमारे पास कैसे पेपर्स हैं. ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, इट्स भी हम पैरेलल चलाते हैं उसमें, बिकॉज ऐसे का वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कोर्स ले लिया या फिर कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है. आपने कभी टॉपर्स की मार्कशीट को एनालाइज किया है? Marksheet, yes, sir. तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा मार्क्स को पहले कहाँ स्कोर करते हैं? ये सबसे ज़्यादा optional. This is Adarsh Pandey and my name is Raman Bansal. I am a UP mentor in Swiss Daily. So today we are going to have the orientation of Adarsh Pandey. So Adarsh, can you please tell me something about yourself? Although we have the information when you have filed your form. So I'm originally from Pratapgarh, Okay, Just Pratapgarh in- UP. Uttar Pradesh, Yeah. and I have done my graduation from NIT Amirpur Okay. in BTech. Mhm. My stream was civil engineering. Mm-hmm. I've been preparing for the UPSC from 2022 itself. Okay. And you have completed your graduation in 2022. 21. 21 to 22, COVID. So COVID, so exams were delayed. Mm-hmm. So I had completed in around December 21. Okay. And from January itself, I've been preparing for civil service. Okay. Very good. And so you have taken any foundation course for GS? No, sir. I've done only self-study. Very good. And same for optional as well. No, sir. I've taken coaching for the option subject. From where? Level Up IS. Karandeep sir. Currently, sir. Very good. So that's good. And how's your experience like UPSC journey अभी तक जो रही है आपकी? So it's been on and off because I lost my previous attempt by just 1.5 marks in prelims. 2024. 24. Okay. And This about- year it's going to be a greater margin, but last year I checked result this year. How much you scored in CSET last year? Last year it was 81 something. So मतलब you were very much confident in CSET. CSAT I'm on. But I will be focusing on CSAT because the paper is getting dicey every Okay. year. So you This can say year- that although you cleared the CSET paper, but you are not confident. No, sir. I am vigilant. I am confident, but I have to be vigilant about That's a CSAT. wonderful word. Confident. What vigilant? Yes, sir. That's good. Confident. And 2025 like आपने GS और CSET के मार्क्स चेक किए थे? So GS I am scoring around 80, 81. Not bad. And about CSET? CSAT it's 78, 79. I have You need to be attempted some vigilant. comprehension questions also. You need to be vigilant now. Yes. Okay, that's good. Now we will move forward with like okay. So if I may ask you like what are your expectations from mentorship? So sir, I want to start my not start, but I want to structure my mains preparation more Very good. efficiently. Chicken and Sir, and we I also need to figure it haven't- out what are the gap areas Yes, and sir. how to fill gap those. areas content wise. Mhm. Plus I'm feeling a bit underconfident in the current affairs section. Very How good. to tackle current affairs, especially with respect to GS3 and GS2 paper. Mhm. And I haven't done much of the answer writing. Mhm. So I want to get Which is on very to important. that. Yes, sir. At the end, मेंस के मार्क्स ही हम Yes, sir. रैंक लेके आएंगे. Okay. This is good. Then we almost have solution for all those fault areas which you have highlighted now. We have the solutions for you, which we are going to discuss in this orientation basically. So this is all about mentorship. Okay. Now let's understand that how our mentorship works. So the vision, or we can say the core idea behind our mentorship is fault finding and course correction. A fault finding could be on any term. Majorly in academics part, we will figure it out. Okay, what are the gap areas? Almost every domain, be it prelims, mains, and even for like interview as well. If we are able to figure it out, okay, while your communication, you have some areas where you have some sort of way of speaking. जहाँ आप optimistic नहीं है, your views about women, your views about minorities or anything.
which need to be aligned with the constitutional ideals, we are also going to ask you that how you can change your views about it, or will give you the information so that you have better informed opinion on certain things. Okay, so we also consider all three phases, be it a prelims, be it mains, or be it interview. In all three areas, we will do our preparation so that whatever gaps we are able to figure it out and what kind of solution we can have on those part. So first part of our orientation is about how to learn for UPSC. Can you please tell me what is the difference between school level examination and UPSC examination? So school level, so there was not much of an analysis part in the school level. It was more like they were teaching something, we have to excel in it, and then we have to reproduce in the examination. It was like that. How much you practice, that is reflected in the exam. But here the analysis and the strategic part is more having more बेसिकली डिफरेंस क्या होता है जो आपने क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है. स्कूल में क्या होता है, एक बुक होती है, एक चैप्टर होता है, चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, टीचर आके चैप्टर को समझाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखाते हैं, सेम क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी और सॉरी एग्जामिनेशंस, हम उनके आंसर्स लिख के आते हैं एंड वी गॉट द मार्क्स. बट इन यूपीएससी वी नो द सिलेबस, तो वी डू नॉट नो एनी पर्टिकुलर सोर्स जिसमें हम एकदम बोल सकते हैं कि 100% रिलायंस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा. अगर सपोज करो वहाँ से आ भी रहा है तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. And even if we know what kind of questions can be asked, we are not certain about the answer as well. Especially means जब subjective questions होते हैं, we cannot be 100% sure कि हाँ इसका यही आंसर होना चाहिए. But for that purpose, we have previous year questions जो हमें थोड़ा सा एक guidance देते हैं या फिर एक trend analysis देते हैं कि हाँ what kind of question UPSC is asking. On the basis of that, we will try to figure it out if what kind of questions can be come in the future examinations, and on that basis we can predict those questions. ठीक है, so this is the examinations. So this is why we have the orientation in the learning for UPSC कि हम सीखते कैसे हैं. First we have the syllabus part. Let's say we are reading any topic. आपने बोला मेंस में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, so let's say आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, आपने एथिक्स पढ़ लिया? बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से. मेजरली GS1 GS2 3 पे ही फोकस रखता है. ओके, नाउ लेट्स से एथिक्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है, बट व्हाट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डू, एक इनर्शिया होता है एप्लीकेशन ना करने का. दे विल रीड, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है. देन दे डू आइदर डू रिवीजन और दे रीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. एक एक्स इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, फिर बाय इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, किसी टॉपर ने आके बोला जेड इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी पढ़ लिया, देन किसी फ्रेंड ने आके बोला वहाँ से भी पढ़ लिया. बट द मेजर प्रॉब्लम विद दिस साइकिल इज दिस थिंग दैट वी आर नॉट लर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. वी आर जस्ट gaining knowledge, but we actually do not know how to apply that knowledge. And what we wanted here in Civils Daily is this thing कि जब आप किसी भी चीज़ का knowledge gain कर रहे हो, we do not want कि आपको उसमें है ना PhD करनी है. With whatever knowledge you have, just apply that knowledge. That's why you will figure it out later on कि हमारे पास test papers हैं. So whatever knowledge you are gaining, you have to apply that knowledge. आपने NCERT पढ़ी तो आप NCERT का टेस्ट लगाइए, एंड ऑब्वियसली एनसीईआरटी से हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ना ही सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स पता चल जाएंगे, बट एटलीस्ट हमें एक स्टेप पता हो गया कि हाँ विद वॉट एवर नॉलेज वी हैव अंडरस्टैंडिंग वी गेन फ्रॉम द एनसीईआरटीज, उसके बेस में हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. वंस यू डन विद द टेस्ट पार्ट, आपने जब एप्लीकेशन किया उस चीज़ का, देन यू डू पोस्ट टेस्ट डिस्कशन विद योर मेंटर. और उस डिस्कशन का पर्पस ये फिगर इट आउट करना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ गलत हुए. देयर मस्ट बी नॉलेज गैप, आपको नॉलेज नहीं थी इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया. There must be some gap regarding to attitude, or we can say we did some sort of silly mistakes. हमने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा. और what we can say behavioral gaps क्या हो सकते हैं कि आपने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर आपने जो चीज़ जिस पर्सपेक्टिव में उस क्वेश्चन को सोचना चाहिए था उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचा. तीसरा क्वेश्चन यही हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, आपको नहीं आता था, आपने छोड़ दिया. There might be a possibility and number of possibilities. एक होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का मन ही नहीं किया. So all these kind of gaps would be figured out, and we will figure it out. If there is a knowledge gap, then we have to revisit our notes. There might be a possibility after applying the test papers, while reading model solution, you may able to figure it out more information on particular topic. Then we can do value addition as well. So this is the process we follow. This is the circular process. Instead of this
लीनियर प्रोसेस, सिर्फ हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको नॉलेज होगा, पर उसको लिखना आना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। एज वी सेड ना, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। दिस इज व्हाट वी वांट टू अवॉइड हियर होगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज टू डीकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिलेबस। आर यू प्रिपेयरिंग फुल टाइम? Yes. Let's we divide our timeline from here to till next year mains examinations. So up till July till December, we are going to focus on prelims plus mains. From January onward, we will focus on prelims only. इसमें आपका dominant prelims का course होगा, which we are going to discuss as well. एंड उसके बाद हमारा इसमें मेंस का पार्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम इस फेज को अगर डीकंस्ट्रक्ट करें कि इस फेज में हमें क्या कंप्लीट करना चाहिए, आपने कहा मेंस मुझे करना है, बट एट द एंड हमें ये भी माइंड रखना होगा कि प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो। बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 अटेम्प्ट्स वी आर समहाउ स्ट्रगलिंग, नॉट एट वेरी बिग मार्जिन, बट वी हैव टू फिगर इट आउट कि वहाँ गैप एरियाज कहाँ हैं जहाँ बिकॉज ऑफ विच आप है ना क्वेश्चन प्रीलिम्स क्लियर करने में डिफिकल्टी आ रही है हमें। तो अगर हम फिगर इट आउट करें, एंड एज वी डिस्कस that we need to prioritize our preparation in those areas जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। एक हो गया प्रीलिम्स, दूसरा हो गया मेंस। एज यू हाईलाइटेड योर प्रायोरिटी फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो ऑप्शनल 2 पेपर हो गए हमारे, GS 1, 2, 3 and 4 एंड ऐसे का पेपर। आपने अभी तक कभी ऐसे लिखे हैं? Yes, sir. कब लिखा? ऐसे like 5-6 ऐसे लिखा होंगे। लिखे हैं आपने? Yes. जस्ट वंडरफुल। अब सी इफ आई आर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, आपने कभी ये टॉपर्स की मार्कशीट को एनालाइज किया है? Marksheet, yes, sir. तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा मार्क्स वो पहले कहाँ स्कोर करते हैं? तो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल। राइट। सेकंड? तो सेकंड एसे और एथिक्स में Right. कभी। एथिक्स। थर्ड हम मान सकते हैं ऐसे भी है, बट ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, इट्स भी हम पैरेलल चलाते हैं उसको, बिकॉज ऐसे का वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कोर्स ले लिया या फिर कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे यू कैन राइट एनी टाइम प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू एनालाइज दैट ऐसे टॉपिक, एंड उसको लिखते कैसे हैं, हाउ टू स्ट्रक्चर इट, एंड इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग फॉर विच यू नीड टू हैव सर्टेन क्लासेस। आप बस लिखना स्टार्ट करते हो, आपके यहाँ पर ऐसे की FLTs होते हैं विथ योर हेल्प ऑफ योर मेंटोर। जो मैं करता हूँ वो ये होता है कि हर संडे को आपके टेलीग्राम चैनल पे एक टॉपिक जाता है, एंड आई आस्क स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म देम। आप बताइए आपको क्या समझ में आया, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ आई वुड से द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम विद ऐसे इज दिस थिंग कि लोगों को टॉपिक ही समझ में नहीं आता। डिफरेंट डायमेंशन अनफोल्ड करना, बिकॉज सपोज करो वहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल लिखा होता है ना, आवर माइंड इज डिजाइन इन सच अ मैनर, वो इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ ह्यूमन समझते हैं। इंडिविजुअल कैन बी अ कंट्री एज वेल, इंडिविजुअल कैन बी अ कंपनी एज वेल, इंडिविजुअल कैन बी सोसाइटी एज वेल। तो वो चीज़ हमें समझना होगा कि वो ऐसे के टॉपिक पे जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं एंड व्हेन वी हैव आवर कन्वर्सेशन, वी आर समहाउ एबल टू फिगर इट आउट कि कैसे डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को सोचा जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे पैरेलली चलाते हैं। उसके बाद कौन सा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर करना है? उसके बाद सर मेजरली GS2 होता है जहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, एंड उसके बाद थोड़ा सा GS1 या GS1 होता है, एंड यहाँ GS3 होता है, यहाँ सबसे कम मार्क्स आते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के, है ना। प्रीलिम्स में जैसे आपने बोला कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट CSET बट स्टिल यू आर विजिलेंट, तो हम क्या करेंगे, आपको एक CSET का पेपर अटैम्प्ट करने को बोलेंगे, उससे फिगर इट आउट करेंगे वहाँ गैप एरियाज कहाँ पर हैं, एंड हाउ टू फिगर इट आउट कि कौन से टॉपिक्स को और कंप्लीट कर लें, सो दैट वी आर having the confidence of at least 100+ marks in CSET paper. Although qualification हमें 67 पे ही मिल जाता है, but we need at least 100+ marks so that you have no doubt in your mind regarding CSET paper. Now comes other GS topic, which is polity, economics, geography, history, environment and science and tech. ठीक है। We will figure it out कि like what is your status in these areas. अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देम अ लॉट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो पॉलिटी में कॉन्फिडेंस है आपको?
सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस है। इवन ज्योग्राफी में मेरा मेजर जो लैकिंग एरिया है वो हिस्ट्री है और एनवायरनमेंट है। Okay. And what about science and tech? इवन साइंस एंड टेक अ लिटिल बिट, Dynamic बट topics. डायनामिक है वो तो। अगर मैं आपको बोलूँ पॉलिटी में आउट ऑफ 10 कितना कॉन्फिडेंस होगा? 10 से 6 to 7 static part majorly Economics, similar. geography, Geography I would say 8 and a half. very good. Including mapping. नहीं सर मैपिंग part है जो ठीक है. So this is good basically. Now this is the prelims part which we are going to figure it out कि आप एक प्रोस्पेक्ट ये हो सकता है कि पहले इन एरियाज को और स्ट्रेंथन किया जा सके, या फिर हम जो हमारे वीक एरियाज हैं उन पर पहले इनिशियल फोकस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टुवर्ड दीज एरियाज. बट एज अ परसिस्टेंट नीड इज अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस में कहाँ स्टेटस है वो हमें समझना होगा. तो ये बताइए मेंस में ऑप्शनल में आपका कॉन्फिडेंस या प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुके हैं? सर ऑप्शन पेपर 1 मेरा फिर से रिवीजन चल रहा है, अच्छा चल रहा है. पेपर 2 आई हैव टू रिविजिट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि पेपर 2 उतना अच्छे से कवर हुआ भी नहीं था in the first place. So you want to take classes again? No, Just classes are revision. not required. I have the sources, so वो कवर हो जाएगा. मेजरली इंडियन पर्सपेक्टिव्स पे हैं, तो मतलब theoretical portion काफी अच्छे से कवर है. ठीक है, we can say revision and answer writing. Yes sir. So like we do not provide mentorship for optional, but we do provide guidance. This is our way of saying this thing कि optional को आप ऐसे prepare कर सकते हैं. Although it's a very lengthy process, but it is effective. जितने स्टूडेंट ने फॉलो किया है दे आर सेइंग सर कि हाँ इट इज़ रेलेवेंट, तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा. बट विच इज़ आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू, नॉलेज प्लस एप्लीकेशन. अब चूंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, तो हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ से पता चलेगा? उसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं. या तो आप बोलेंगे मैं सर कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ. Yes sir. दूसरा सबसे बढ़िया सोर्स होता है टॉपर्स की कॉपीज. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज, सपोज करो आपके पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं ना उनको आप यहाँ लिख लीजिए. ठीक है, फिर एक चीज़ करिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं, अगर नोट्स हैं जो टॉपिक का है, आप एक सवाल पूछ सकते हैं खुद से कि नोट्स हैं. आपने बोला यस मेरे पास नोट्स हैं, आप उसका रिवीजन करिए जैसे आपने आज रिवीजन किया हुआ है. फिर टॉपर्स की कॉपीज में उन क्वेश्चंस को ढूंढिए रिलेटेड विद दोज टॉपिक्स. आई नो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जहाँ इंटरलिंकेजेस होते हैं एक दूसरे टॉपिक्स के साथ, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज आप पहली बार ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं. उन क्वेश्चंस को ढूंढिए. जनरली अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की 10 कॉपीज डाउनलोड कर लेते हैं प्रीवियस टॉपर, दोज हु हैव स्कोर्ड समथिंग अराउंड 280 प्लस और 300 प्लस मार्क्स, तो वहाँ से क्या होगा, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड. उन टॉपर्स की कॉपी से उन क्वेश्चंस को पहले आप खुद से आंसर लिखिए, उनका आंसर्स मत पढ़िए. देन वंस यू राइट योर आंसर्स, आपने अपने आंसर्स लिख लिए, उसके बाद अपने आंसर्स को टॉपर के आंसर्स को कंपेयर करिए. रेफरेंस में इवैल्यूएट करना. हाँ, अपने रेफरेंस में इवैल्यूएट करिए कि उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने कैसे कंक्लूड किया, आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं. जो आपकी मेन बॉडी है वो हो सकता है उन्होंने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रखा हो, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, मैप्स, कुछ ट्रेंड बना रखा हो उन्होंने, कुछ भी एनीथिंग, कुछ ग्राफ्स वगैरह बना रखे होंगे. सो यू कैन डू दैट वैल्यू एडिशन विद इन योर नोट्स. उसके बाद आप है ना प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड यू विल फाइंड, बिकॉज ऑप्शनल में मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, यू विल फाइंड टॉपर्स के जो आंसर्स होंगे, टॉपर्स में जो कॉपीज में जो क्वेश्चंस होंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे मोर और लेस सेम होंगे. तो उससे आपके पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे. यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस. आप टॉपिक ट्राई करके देखिए, यू विल फाइंड हेल्पफुल दीज टॉपिक्स. ओके, रिगार्डिंग एथिक्स, आपने आंसर राइटिंग की है नहीं की पहले बताइए. आंसर राइटिंग सर एथिक्स की नहीं की है, GS1 GS2 थोड़ा बहुत GS3. ठीक है, अभी तक आपको कोई डाउट इसमें डी क्लासिफिकेशन में? आपको समझ में आ रहा है प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लेट अंडरस्टैंड नाउ कि हाँ हाउ स्विल स्टिल इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस होल एंडेवर. ओके, सो इट्स अ 12-month strategy program for you. ठीक है, दिस इज योर टाइमलाइन एज यू कैन सी ओवर हियर. जुलाई से लेके बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी यू हैव
Big Fours. Big Fours means polity, economics, geography, and history, where we are covering our NCRTs and core books along with previous year questions. And for previous year questions, we have AR table, जिसका access आपको मिलेगा, and we are going to see this AR table as well. And then during this phase, जब हम preparation अपनी prelims की कर रहे होंगे, we will also cover the main part of these 4 topics. And along with that, आपको optional और जो major areas हैं, जो हमने priority fix कर रखी है, उसके according we will cover majority of our mains by December. Along with that, we also make strengthen the areas of prelims जहाँ आपको confidence है, which is polity, economics, and geography, and we will also work on those areas where you are struggling as of now. This is the whole target we have for our July to December part. Once you enter into the January part, you have your dominant prelims course where you get lectures. We are also going to discuss that in later in a very detailed manner. And that point of time, you have to have a very rigorous exercise for how to attempt full length test papers, how to use techniques, and how to use common sense while appearing in the while attempting this full length test papers of GS. And hopefully by December आपका CSET बहुत अच्छे से हो चुका होगा, उसमें उतना कोई डाउट होगा नहीं है. From January till आपका prelims examination, you are focusing on your prelims part, and after prelims, you are going to focus on mains part. So let's one by one. You can see your preparation broken day wise, and although there are durations is very much defined over here कि हमें किस चीज़ को कब complete करना है, but somehow it is a bit flexible because some of the students have already done a lot of things. We can fasten up certain things जहाँ हम strong areas हैं. We can loosen some days for those areas जहाँ हम थोड़ा सा struggle कर रहे हैं. अगेन जहाँ डोमिनेट प्रीलिम्स 2026 होगा आपके लिए, जहाँ ऑलमोस्ट 5000 क्वेश्चंस होंगे, 150 प्लस माइक्रो थीम्स होंगी. माइक्रो थीम्स इज नथिंग बट अ डीक्लासिफिकेशन ऑफ सिलेबस. 8 years के प्रीवियस क्वेश्चंस का डिस्कशन. एज यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एडवांस पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स. वो वही होता है कि हाउ टू अप्लाई पेपर्स, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस basically when we have doubts, because as you have already appeared in the prelims examination, you have also faced that questions जहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 में श्योरिटी है पर एक क्वेश्चन में डाउट होता है. For how to attempt those kind of questions is also being learned at that point of time. This is your mains का program where you going to have a full length test papers, 1-to-1 mentorship session with your mains के जो mentors होते हैं, and वहाँ पे आपको है ना एडवांस लेवल आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स दिए जाते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट क्वेश्चन है, उनको कैसे आंसर करना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे आंसर करना चाहिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में क्या क्या एड ऑन होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स वी कैन यूज इट. सो इट इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक बेसिकली. आपने करंट अफेयर्स का पॉइंट हाईलाइट किया था, तो बेसिकली वी हैव करंट अफेयर्स व्हिच इज कॉल्ड समाचार मंथन. The word manthan in itself is saying this thing. It's not something a PDF which is being provided to you. एक वीकली पीडीएफ होती है जो फ्राइडे को आपके पोर्टल पर अपलोड होती है. इस वीकली पीडीएफ में जो उस पर्टिकुलर वीक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स जो होती हैं विच इज़ डायरेक्टली रेलेवेंट विद आवर एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन डिमांड, एंड यूपीएससी की लाइन में जो न्यूज़ होती है वो वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलती है. बेस्ड ऑन दैट पीडीएफ, इट्स नॉट समथिंग अबाउट गिविंग पीडीएफ. You have your classes of समाचार मंथन on Saturday and Sunday by 2 different faculties. ठीक है, वो आपको पूरा एनालिसिस देंगे उस पीडीएफ के बारे में कि क्या कैसे हो सकता है एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद आवर यूपीएससी एग्जामिनेशन. बेस्ड ऑन दैट, इट नॉट इवन रीडिंग, इवन वी आर प्रोवाइडिंग टीचिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ टेस्ट पेपर्स ऑन दैट पार्ट. उस पीडीएफ के बेसिस पे आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. So this wholesomeness of Samachar Manthan, that is why we term this coin as Samachar Manthan. That first you have read, then you have listened, then you are writing. Simple. And this is wholesome understanding. Those news are not just because to give you some sort of general knowledge that is directly relevant with our examination. And when you see Samachar Manthan, you will see also. Do not have as of now, but you will see that thing. Okay. We will see this thing that उसको we also every news what is relevant आप previous questions से उसको अलाइन भी करके दिया जाता है. ठीक है. These are undated NCERTs. जो normal NCERTs हमें मार्केट में मिलती हैं, we read them but we are not able to understand the relevance of those lines given over there. तो यहाँ हमने क्या किया है, हर NCERT को है ना डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है. एक कलर से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी से. सो दैट व्हेन यू रीडिंग द एनसीईआरटी यू कैन अंडरस्टैंड.
आप डायरेक्टली अनोटेटेड एनसीईआरटीज को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वेन एवर वी ऑल्सो डू वैल्यू एडिशन विद इन एनसीईआरटी एज वेल, गिव यू द पर्सपेक्टिव कि हाँ किस पॉइंट को हाईलाइट करना है, what kind of definition we have to remember, what kind of facts could be relevant for us to understanding purpose. These are micro themes जो हमने declassification कर रखा है. जो आप देख रहे हैं which is a part of Airtable, वो हम देखेंगे और इसका एक्सेस आपको मिलेगा. As you can see, अगर ये micro themes आप देख रहे हैं पॉलिटी की प्रीलिम्स का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो you will find there are a lot of questions being asked from GDC and political theory. When I show you this thing live, आप देख सकते हैं कहाँ कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, किस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आप देख सकते हैं डिपेंड्स की माइक्रो थीम्स है. एंशिएंट कल्चर्स में कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं. यू कैन डू ऑल द एनालिसिस पार्ट ओवर हियर. ईच एंड एवरी जो हमारा सिलेबस है उसको डिकोड कर दिया. बर्निंग इश्यूज, इट्स अ मेंस स्पेसिफिक मंथली मैगजीन. यहाँ एक पर्टिकुलर मंथ्स में जो हॉट टॉपिक्स रहे हैं विच इज़ रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, जैसे ऑपरेशन सिंधु, हमने उस टॉपिक्स को यहाँ नॉट इवन राइटिंग इट, हमने उसको 2 या 3 पेज में समराइज करते हैं और ऑल्सो शो द स्टूडेंट्स कि हाउ दे आर लिंक्ड विद GS 1, 2, 3 एंड 4 पेपर. यू कैन सी ओवर हियर बुलडोजर जस्टिस 2 पेज में समराइज हुआ है with enough details to highlight the whole topic. एक है ना जो होता है ना कि जो नॉइस है वो सब हटा दिया है, which is directly relevant for your examination, वो हाईलाइट कर दिया है. and also linked with GS 1, 2, 3 and 4 paper. The same old two you can see in this article as well. Atomic Notes is prelims specific current affair magazine for us. जो हमारे important current affairs होते हैं वो यहाँ पर mention होते हैं. X Factor Notes. As you can see over here, these notes are prepared along with the help of AI2 and Miss Vedant. UPSC मेंस का ऐसे के पेपर का X Factor notes हैं. So X Factors, you can see that how these notes are designed by aligning with micro themes, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, and along with the previous year questions, and with the help of the insight of the rankers कि उनको कैसे है ना डायरेक्टली ओरिएंटेड किया जाए फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. तो जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर सेइंग सर मेरे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप X Factor नोट्स को लीजिए. दीज आर योर मदर नोट्स. आप यहाँ इनको पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर करिए. योर प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ. एंड वॉट एवर वैल्यू एडिशन यू वांट टू डू इट, अब वो अपने X Factor नोट्स में ही करिए. एंड लेटर ऑन वी विल मेक अ 1 पेज नोट्स आउट ऑफ दीज X Factor नोट्स ओनली. These are flash notes. Flash notes you can see is you can say a quick revision notes for you. Some of the student ask कि सर के लक्ष्मीकांत के notes बनाने हैं, and we say कि जरूरी नहीं है. You can refer flash notes for that matter. In not only those topics are summarized but also give clarity. If you can see here, there is this whole idea is given in the tabular format, so comparison become very easy for you. जो normally पहले हमें manually करना पड़ता था, ये आपके लिए बनाया दिया हुआ है. फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, वहाँ एंड लक्ष्मीकांत में पढ़ते समय हमेशा डाउट हो जाता है. यू कैन सी डायरेक्टली फॉर द क्लैरिटी पास. मेक श्योर दीज थिंग्स आर कंसाइज एंड ऑल्सो गिविंग क्लैरिटी टू यू. One more thing, like for success in each and every part of your life, आपने NIT में गए हो, we need to have certain routine, and we also help student to build that routine, and this is what we have, this daily proof, which you can call as daily planner as well, and which you can call as accountability sheet as well, in which you have to write it down your whole day and send it to me on Telegram or WhatsApp, wherever you prefer to that. अब सोने से पहले भेजिए and let me know कि आपने टाइम कहाँ स्पेंड किया हुआ है. And the purpose behind this daily planner is to build some sort of self accountability within you. जब आप उठ रहे हो कि मैं 6 बजे उठा, 7 बजे पढ़ाई करने स्टार्ट की, 7 बजे के बाद पढ़ाई करने के बाद आपने क्या किया. सी आपने ये सुना, have you heard about this philosophy of Kaizen? It's a Japanese philosophy which talks about continuous improvements, small improvements on a daily basis.
somehow this daily planner is based on that philosophy only. Because what majority of students do, they have their life become mechanical. वो उठते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, सो जाते हैं. They themselves don't know कि उन्होंने किस particular point of time में क्या काम किया. And somehow they are repeating the same mistake again and again, and somehow they are also getting the same result as well. With this daily planner, what we are highlighting here is this thing कि आप अगर डेली रूटीन में आपने टाइम ऐसे स्पेंड किया है कि 7 से 10 में पढ़ाई कर रहा था, 10 से 12 मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, 12 से 2 फिर पढ़ाई करी, 2 से 4 मैं क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, 4 से 8 मैंने पढ़ाई करी, 8 से जब तक मैं सोया मुझे नहीं पता. तो व्हेन यू आर सेंडिंग दिस प्रूफ टू मी, देन आई आस्क यू क्या कर रहे थे, दैट वुड फोर्स यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. वो आपको क्लियरली हाईलाइट होगा कि मैं 4 से 5 घंटे कुछ कर नहीं रहा हूँ. एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि उन 4 से 5 घंटे में आप कुछ करें, मतलब पढ़ना ही जरूरी है, बट दैट टाइम नीड टू बी यूज इन अ प्रोडक्टिव मैनर. पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप जिम जाइए. पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेडिटेशन करिए. पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप खेलने चले जाइए, क्रिकेट खेलिए, स्पोर्ट्स करिए, जो भी करना है. बट इट्स कैन नॉट बी द पार्ट कि सर मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो सर मुझे पता नहीं मैं कहाँ गया वो था. ये नहीं हो सकता है. सो ऑन अ डेली बेसिस यू नीड टू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी. आप एक दिन रिपीट करेंगे, 2 दिन रिपीट करेंगे, तीसरे दिन आपको भी लगेगा कि या तो आप भेजेंगे नहीं या फिर आप इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे, बिकॉज टाइम एंड अगेन आपका माइंड उस समय पे हिट करने लगेगा कि वो फिर रात को वही लिखना पड़ेगा. इट बिकम मोर एम्बेरेसिंग लेटर ऑन. ठीक है, अब थोड़ा सा अपना पोर्टल देख लेते हैं. ये आपका पोर्टल है. सी इन जनरल आप जैसे ही ओपन करेंगे पोर्टल, यहाँ डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा. ठीक है, आपको लर्न पे जाना है एंड यहाँ बाय डिफॉल्ट ओल्डेस्ट फर्स्ट आता है, इसको आपको न्यूएस्ट फर्स्ट करना है. यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारी चीज़ें हैं. एसएमएस के ऐसे जो इस बार का फुल लेंथ टेस्ट पेपर है वो यहाँ पे एक्सेस हो रहा होगा स्टूडेंट्स को. यहाँ एसएमएस अपडेटेड एक्सपेक्टेड नोट्स हैं. पहले एक्सपेक्टेड नोट्स थे, हमने उसको और क्रिस्प किया हुआ है. देन वी हैव डोमिनेट ऐसे प्रोग्राम 2026 के लिए. प्रीलिम्स के एफएलटीज हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2026 के लिए. ये आपके पास 3 तरह की टेस्ट सीरीज होती है. एक होता है प्रीलिम्स के लिए बेसिक टेस्ट, एडवांस टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स. सो प्रीलिम्स के जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसमें है ना सेक्शनल टेस्ट होते हैं. बेसिकली आपके पास जो टेस्ट सीरीज है वो देख लीजिए. एक होती है आपके पास मेंटोरशिप टेस्ट. मेंटोरशिप टेस्ट में आपको मिलते हैं एनसीईआरटीज के टेस्ट एंड लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे. वी आर एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स जहाँ पे ना बाकी सिलेबस बाकी टॉपिक्स के भी चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे. देन मेंटोरशिप टेस्ट के बाद हमारे पास जो 100 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसमें होता है राइम प्रीलिम बेसिक टेस्ट. बेसिक टेस्ट होते हैं सेक्शनल टेस्ट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी. देन वी हैव एडवांस टेस्ट इन विच थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इंप्रूव, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर, एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरलिंकेजेस होंगे. एंड देन वी हैव फुल लेंथ टेस्ट जिसमें सारे पूरा सिलेबस का है ना आपका क्वेश्चंस आएंगे. द सेम इज द प्रोसेस ऑफ मेंस का प्रोग्राम. उसमें बेसिक टेस्ट होंगे, एडवांस टेस्ट होंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स होंगे. यहाँ से आप मेंटरशिप टेस्ट देख सकते हैं. ठीक है, मेंस एसेंशियल प्रोग्राम है. बेसिक टेस्ट है आपके यहाँ. अनऑडिटेड एनसीईआरटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ प्रीवियस क्वेश्चंस की डिस्कशन हुआ है. फ्लैश नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. So yeah, I would suggest you to just explore this whole portal part. You will get a lot of information out of it. Atomic notes आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. So you need to explore a bit. And जो माइक्रो थीम्स की मैं टेबल की बात कर रहा था वो यहाँ पर है. जैसे यहाँ देखेंगे ना, इसका एक्सेस आपको मिलेगा. मैं आपको लिंक भेजूंगा, वहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा इसका. प्रीलिम्स का पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस है यहाँ पर. अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसका एक्सेस आपके पास होगा. वंस यू आर रीडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आप पॉलिटिकल थ्योरी के एनसीईआरटी पढ़ते समय देख सकते हैं कहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं. जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यू विल फर्स्ट आपको ये समझ में आ जाएगा किस ईयर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यू विल फाइंड इन दिस एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वहाँ पर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल आए हुए हैं एक्सेप्ट 2022. एंड यू कैन सी दोज क्वेश्चंस एज वेल. आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ने के बाद आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं. यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, द सेम होल्ड ट्रू फॉर मेंस एज वेल. देखिए यहाँ क्वेश्चन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, सेंट्रल स्टेट टेस्ट से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं.
So when we are making notes for, let's say either you have notes for GS2, पर जब हम GS2 के notes prepare भी कर रहे होंगे तो we will follow this Airtable perspective. हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट तहसील, सो दैट जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे उनके नोट्स बहुत ही काफ़ी डिटेल्ड मैनर में होने चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट नीड टू बी बेस्ड ऑन द PYQs एनालिसिस, सो दैट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम उस नोट्स के बेसिस में सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. एनी डाउट? काफ़ी बोल लिया मैंने. करंट अफेयर्स को कैसे अलाइन करेंगे समाचार मंथन. समाचार मंथन से? और जो PDF रहेगा उसके कंटेंट जैसे जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उसमें नोट्स में ऐड करना. ऑब्वियस बात है, वैल्यू एडिशन उसी समय करते जाएंगे. और एक रेफरेंस नोट मेकिंग का मिल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिव नोट मेकिंग नहीं की है GS2 या GS3 में भी. रेफरेंस नोट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेड नोट्स है ना बस. अच्छा. अभी उसके जो आप बाकी के टॉपिक्स देखोगे दैट बिकम योर रेफरेंस नोट्स. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपके पास नोट्स हैं या आपके पास नहीं है तो आप एक्सपेक्टेड नोट्स पर जा रहे हैं, और अगर आपके पास हैं तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपके जो नोट्स हैं और एक्सपेक्टेड नोट्स हैं आप अलाइन कर सकते हैं. इफ़ यू फील कि मेरे नोट्स ठीक हैं, एक्सपेक्टेड नोट्स से मुझे वैल्यू एडिशन कर लेना चाहिए, तो आप वहाँ वैल्यू एडिशन कर लीजिए. एंड इफ़ यू फाइंड कि मेरे नोट्स में उतनी दम नहीं बची हुई, तो आप एक्सपेक्टेड नोट्स से उनको रिप्लेस करिए. जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पर्सनल नोट्स में उनको आप एक्सपेक्टेड नोट्स में वैल्यू एडिशन कर लीजिए. जो अच्छे एग्जाम्पल्स अगर आपने कुछ नहीं लिख रखे हैं वो आप एड ऑन कर लेंगे वहाँ पर. ठीक है. नाउ कम्स द पार्ट कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. हाँ, इसके बारे में और जान लीजिए. मेंटरशिप सेशन लॉग बुक, जब भी आप वहाँ ऑफलाइन आ रहे हैं मेरे से मिलने, तो इसको साथ में लेके आएंगे, बिकॉज समहाउ इट इज़ एक्ट एज अ ट्रैकिंग पार्ट कि हमने क्या टारगेट्स दिए थे, कितने अचीव हुए, एंड हाउ मच वी आर प्रोसीडिंग फॉरदर. इट्स एक्ट एज अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट फॉर अस, है ना, कि कहाँ हमारी प्रिपरेशन चल रही है. So let's start with something. Some nations हमारे targets हमें लिख लेते हैं. Do we have a plan? Just give it a vector. Leave that thing. We'll write it down later on. Okay. So what our target is going to be very simple. In prelims, you want to work on the strength areas or the weak areas? So strength areas first. Strength areas. Can we wrap up polity within 15 days? When we are saying completion का मतलब ये होगा knowledge plus application. It's not about reading. Test attempt भी करना. So if you want, we can start with polity and optional. एंड एक ब्रॉड टाइमलाइन अगर हम लें तो ये होगा कि ऑप्शनल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप ऑप्शनल को 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट रैप अप कर देंगे. ठीक है. एंड देन वी कैन स्टार्ट विद एथिक्स. और इफ़ यू फीलिंग कि नहीं सर मुझे मेंस ही पढ़ना है, अभी प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, तो वी कैन स्टार्ट विद एथिक्स एंड ऑप्शनल नाउ. हाउ यू वांट टू प्रोसीड? प्रीलिम्स और मेंस साथ में ही है. सो वी विल स्टार्ट विद पॉलिटी एंड ऑप्शनल. आप ऑलरेडी पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी टू रीड पॉलिटी. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERTs. कंसेप्चुअली क्वेश्चंस हैं तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में, जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं. If you can go through your political theory and if you can see the polity NCERTs, you will find that there are a lot of areas where questions being directly asked. Okay. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन why and how, तो जो चैप्टर 1 है हमारा इन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क का why and how, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या होता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से एरियाज हमें बोरो किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट एरिया एज वेल. द सेम होल फॉर द अदर टॉपिक्स. इलेक्शंस प्रोसेस क्या होता है, ऑल्दो यू मे हैव दैट आर्गुमेंट कि सर वो सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे. दैट्स ट्रू,
नहीं, मैं एनसीईआरटी भी कंसिडर करता हूँ हाँ, पॉलिटी के लिए, खासकर हाँ। वो दो एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हाँ, पॉलिटिकल तो थ्योरी। वो चीज़ है कि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उन एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़िए एंड फोकस ये होना चाहिए कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो अलॉन्ग विथ रीडिंग हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उन चीज़ों में। एनसीईआरटीज़ और दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट लाइक नॉट ओनली फॉर पॉलिटी, even for GS4 paper and even for essay paper as well. So you have to read each and every topic. Let's say वहाँ political theory में concept होता है harm principle. आपने पढ़ा है कभी? रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, GS मिल का concept है, तो आपका ये पर्पज नहीं होना चाहिए कि मैंने बस उसको पढ़ लिया है, आपको समझ में भी आना चाहिए, अगेन अप्लाई करना भी आना चाहिए, बिकॉज वो हार्म प्रिंसिपल जब भी है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कटेल करने की बात आएगी, आपको वहाँ हार्म प्रिंसिपल का रेफरेंस देना ही देना है, एंड काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल है वो, तो आपको पता होना चाहिए। सो इन दिस वीक व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप स्पीड अप करेंगे चीज़ें और एफर्ट्स काफ़ी अच्छे से मारेंगे, तो फोकस ये होना चाहिए हमारा पॉलिटी एनसीईआरटीज़ दोनों होंगी, ठीक है, अलॉन्ग विद आर एनसीईआरटी टेस्ट, ठीक है। एंड इन ऑप्शनल में जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, ये चार्ट मुझे आप बना के दिखाएंगे कि सर मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आई वुड एक्सपेक्ट कि जो आप आंसर्स लिख रहे हैं वो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, बिकॉज मैं एवेल्यूएट तो नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे इतना सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उनके आंसर्स लिखे हैं। तो ऑप्शनल आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप हर एक टॉपिक के बस 2 आंसर लिख दीजिए, सो दैट हमें इतनी श्योरिटी रहे कि हमने पूरा ऑप्शनल एप्लीकेशन कर लिया है, कोई भी एरिया कोई भी डोमेन हमने नहीं छोड़ा है। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होगा, बाद में जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, बट इतना हो जाना चाहिए, मेरा टास्क इतना है कि आपसे बस इतना करवा दो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज वगैरह करते रहेंगे। एंड संडे को हम एक ऐसे का टॉपिक देंगे, उसको संडे को बैठ के आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब आता है एक आखिरी टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स, समाचार मंथन। तो आप इन प्रोसेस में जो आपका प्रीवियस वीक का होगा उसका समाचार मंथन आप पढ़िए। आई वांट टू आस्क, आपका प्रोसेस क्या होता है, आप डेली समाचार मंथन पढ़ना चाहेंगे या एक दिन बैठ के पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे उसे? थोड़ा थोड़ा डेली करंट, थोड़ा थोड़ा डेली, बिकॉज वो पीडीएफ होती है, हार्डली 30-35 पेजेस होते हैं उसमें, तो डेली आप उसको पढ़िए, ठीक है, अंडरस्टैंड करिए उसको, ठीक है। तो डेली ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर उसको दे दीजिए, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार पढ़ के देखिए, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप काफ़ी जल्दी भी पढ़ लें उसको। तो जैसे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है आधे घंटे पौना घंटे, उसके साथ ही है ना आप समाचार मंथन भी पढ़ लीजिए, तो लिंकेजेस भी आपको दिखता रहेगा न्यूज़पेपर में, बट आई वुड सजेस्ट यू कि पहली प्रायोरिटी हमारी न्यूज़पेपर रहती है, अलॉन्ग विद दैट हमारा समाचार मंथन होता है। आप ये मत कीजिएगा कि मैं समाचार मंथन को है ना न्यूज़पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन, ठीक है। एनी डाउट? ओके, तो दिस इज इट फॉर ओरिएंटेशन, ठीक है।